वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ के ऊपर स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन करने जा रहे हैं वो है फ्रीडम एट मिडनाइट, रिटन बाय कॉम्बो ऑफ द राइटर्स डोमिनिक लेपेरे एंड लैरे कॉलिंस। तो डोमिनिक लेपेरे के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा जान लें। डोमिनिक लेपेरे was born in Châtelet-Flague, Charente-Maritime, France. At the age of 13, he traveled to America with his father, who was a diplomat. He attended the Jesus School in New Orleans and became a paper boy for the New Orleans item. He developed interest in traveling, writing and cars. तो इनका फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर एक डिप्लोमेट थे। फ्रांस में जन्म लेने के बाद अमेरिका गए, जहाँ पे इनकी स्कूलिंग जो हुई है जिसेल्ट स्कूल के अंदर न्यू ऑर्लियंस में हुई, और न्यू ऑर्लियंस आइटम के लिए इन्होंने पेपर बॉय का काम भी किया है। लेपेरे रेनोवेटेड ए 1927 Nash that his mother gave him and decided to travel across America during his summer holidays to earn his way. He painted mailboxes. Later he received scholarship to study Aztec civilization in Mexico. He hitchhiked throughout America, living an adventurous existence, wrote articles, washed windows in churches, gave lectures and even found a job as a siren cleaner on boat returning to Europe. तो उन्होंने लगभग एक एडवेंचरस लाइफ स्पेंड की है। पूरे अमेरिका में वो घूमे हैं, उनको स्कॉलरशिप भी मिली है एज़ेटेक सिविलाइजेशन मैक्सिको में, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, और बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स किए। बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अपना करियर को टेस्ट किया। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स अपनी डेली अर्निंग के लिए उन्होंने हर छोटे से छोटा काम भी अडॉप्ट किया। वन डे a truck driver who picked him up on the road to Chicago stole his suitcase. He found the driver before he policed it. The Chicago Tribune paid him $100 for his exclusive story. His 20,000 miles of adventure, beginning with just $30 in his pocket, led to his first book, $1 for 1,000 किलोमीटर। तो क्योंकि वो एक ट्रैवलिंग राइटर थे, उनको ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो एक बार एक इंसिडेंट है उनकी लाइफ का कि एक ट्रक ड्राइवर ने उनका सूटकेस चोरी कर लिया था, और इन्होंने पुलिस से पहले उसको पकड़ लिया था। और इस स्टोरी को एक्सक्लूसिव देने के लिए ट्रिब्यून ने उनको $100 भी पेड किए थे। और इन्होंने जितने एरिया का डिस्टेंस कवर करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, जेब में केवल 30,000 थे और इसी $30 थे, और इसी चीज़ ने इनको पहली बुक का टाइटल दिया, $1 for 1,000 किलोमीटर, बिकम वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ द पोस्ट वॉर फ्रांस एंड यूरोपियन कंट्री। और ये बुक उस समय की बेस्ट सेलर बुक थी। अब हम लोग जानेंगे लैरे कॉलिंस के बारे में। Born in Westford, Hartford, Connecticut, Collins was educated in Loomis Chaffee Institute in Windsor, Connecticut, and graduated from Yale as a BA in 1951. He worked in advertising department of Procter and Gamble in Cincinnati, Ohio, before being conscripted in U.S. Army. While serving in the public affairs office of the Allied headquarters in Paris from 1953 to 1955, he met Dominique Lepaire, with whom he would write several bestsellers over 43 years. तो इनका जन्म वेस्ट हार्टफोर्ड में हुआ। इन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो येल से की अपनी। प्रॉक्टर और गैम्बल में एज एडवर्टाइज़र भी इन्होंने काम किया, और उसके बाद इन्होंने आर्मी में को भी ज्वाइन किया। और तभी 1953 के दौरान इनकी मुलाकात डोमिनिक लेपेरे के साथ हुई, और अगले 43 इयर्स में इन दोनों ने मिलके जो बुक्स लिखी वो आने वाले कई सालों के लिए बेस्ट सेलर बुक्स साबित हुई। He went back to Procter and Gamble and became product manager
of the new food division in 1950. Disillusioned with commerce, he took to journalism and joined the Paris Bureau of United Press International in 1956 and became the news editor in Rome the following year, and later the Mid East Bureau chief in Beirut. In 1956, he joined Newsweek as Middle East editor based in New York City. He became the Paris bureau chief in 1961, where he could work until 1964 until he switched to writing books. In 1965, Collins and Dominique Lepere published their first joint work in Paris is Paris Burning. तो 1965 में पहले तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग के आर्मी में एडवर्टाइजमेंट के बिज़नेस में अपना लक ट्राई किया, फिर आर्मी में चले गए, फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की, बट डिसइल्यूजन होके फाइनली उन्होंने राइटिंग को अपना एक प्रोफेशन बना लिया। और डोमिनिक लेपेरे के साथ उनकी पहली बुक जो आई थी, जॉइंट बुक आई थी, वो थी इज़ पेरिस बर्निंग, ए टेल ऑफ नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रेंच कैपिटल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। और ये थी नाजियों ने जो फ्रांस के ऊपर वर्ल्ड वॉर टू के बाद कब्ज़ा कर लिया था, उसी के ऊपर आधारित थी। एंड हिटलर्स प्लान टू डिस्ट्रॉय पेरिस शुड इट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ अलाइज। द बुक वाज एन इंस्टेंट सक्सेस एंड वाज मेड इनटू अ मूवी इन 1966 बाय डायरेक्टर रेने सेमेंट, स्टारिंग किर्क डगलस, ग्लेन फॉर्ड एंड एलन डेन। और इस बुक के ऊपर 1966 में रेने सेमेंट ने एक सेम टाइटल से मूवी भी बनाई। इन 1960 में दे को ऑथर्ड और आई विल ड्रेस यू इन मॉर्निंग अबाउट द स्पेनिश बल फाइटर मैनुअल बेनिट्स एल कॉर्डस। फिर उन्होंने 1967 में एक और बुक लिखी और आई विल ड्रेस यू इन मॉर्निंग। In 1972, after 5 years research and interviews, they published O Jerusalem, about the birth of Israel in 1948, turned into a movie by L.A. Chorgel. फिर 5 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने एक और बुक लिखी, और जेरूसलम, जिसके ऊपर मूवी भी बनाई गई बाद में। In 1997, they published Freedom at Midnight, a story of Indian independence in 1947 and the subsequent assassination of Mahatma Gandhi in 1948. फिर उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा 1975 में, भारत की इंडिपेंडेंस के ऊपर जो बुक आधारित थी और जिसमें महात्मा गांधी की असैसिनेशन के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें लिखी गई थी। 1948 इट इज़ सेड दैट दे स्पेंट $3 लाख रिसर्चिंग एंड स्टिल इमर्ज्ड वेल्दी। इन्होंने उस समय $3 लाख इस बुक के रिसर्च के ऊपर खर्च किए थे, और उसके बावजूद भी जब ये बुक पब्लिश हुई, इनको बहुत सारा जो पैसा था इस बुक से हासिल हुआ। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डोमिनिक लेपेरे और लैरे कॉलिंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक, that is Larry Collins and Dominique Lepere's Freedom at Midnight. The present story is one of the most touching story of true love which transcends every boundary of religion, caste and nation. एक बहुत ही टचिंग लव स्टोरी है जो हर प्रकार के बंधन को तोड़ देती है, चाहे वो जात का था, वो धर्म का था या देश का था। उन सभी बाउंड्रीज़ को पार करती हुई एक बहुत ही टची लव स्टोरी है। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड 2 मेन करेक्टर हैं, बूटा सिंह जो कि एक सिख और इंडिया को बिलोंग करता है, और जैनब जो कि एक मुस्लिम लड़की है और पाकिस्तान को बिलोंग करती है, अंडर द बैक ड्रॉप ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो बेसिकली इस स्टोरी का जो आधार है 1947 में जो भारत का और पाकिस्तान की बीच में जो पार्टीशन हुई थी उसी के ऊपर आधारित है, और 2 मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, और वो 2 मेन कैरेक्टर हैं बूटा सिंह एंड जैनब। इन दिस स्टोरी द राइटर्स हैव प्रेजेंटेड थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ बूटा सिंह एंड जैनब हाउ द रिलीजन स्टैंड इन देयर वे ऑफ लव एंड हाउ देयर लव स्टोरी एंड्स इन अ ट्रेजेडी। राइटर्स ने इन दोनों के कैरेक्टर के ज़रिए ये दिखाया है कि किस तरीके से
उनके सच्चे प्यार के रास्ते में जो धर्म है एक मेजर बाधा बनता है, और किस तरीके से यही धर्म जो है अल्टीमेटली उनकी लव स्टोरी को एक ट्रेजिक एंडिंग में भी कन्वर्ट कर देता है। थ्रू देयर करेक्टर द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड द थीम दैट लव इज़ द सुप्रीम पावर इन द यूनिवर्स। इन दोनों के करेक्टर के ज़रिए राइटर ने ये भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि दुनिया में हेट्रेड जो है, एनिमिटी जो है वो हर जगह पे मिल जाएगी, बट लव जो है वो कहीं कहीं पे मिलेगा, और लव ही दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। प्यार के साथ कही गई बात से हम लोग दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। Similarly, the writer has also presented that how Bhutta Singh stands as a character who is representation of love and humanity and teaches the world lesson of true love। और उसी तरीके से बूटा सिंह एक ऐसा करैक्टर बना के कहानी में पेश किया गया है जो कि प्यार और इंसानियत का प्रतीक है। जब आसपास हर जगह धर्म के नाम पे दंगे हो रहे थे, नफ़रत फैली हुई थी, तब भी बूटा सिंह इंसानियत और प्यार का प्रतीक बन के वहाँ पे ज़ैनब की हेल्प करने के लिए खड़ा था। और इस तरीके से बूटा सिंह के करैक्टर के ज़रिए उसने दुनिया को, हम लोगों को, उस समय के लोगों को सच्चे प्यार और ब्रदरहुड का लेसन सिखाया। और ये कहानी जो है एक सच्चे इंसिडेंट के ऊपर आधारित है, और इसके ऊपर बॉलीवुड के द्वारा एक मूवी भी बनाई गई है, शहीद मोहब्बत बूटा सिंह। और इस लेसन की अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाके एनालिसिस करना है तो आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। द स्टोरी बिगिंस with the presentation of hatred of 1947 partition of India। बूटा सिंह एंड ज़ैनब आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। कहानी की शुरुआत 1947 की दुश्मनी भरे माहौल में होती है। बूटा सिंह और ज़ैनब कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। बूटा सिंह इज़ अ 55 years old Sikh who has not married and lives a very lonely life in a village। He has been retired from आर्मी एंड आल्सो टेकन पार्ट इन द वर्ल्ड वार 2। तो बूटा सिंह एक 55 साल का ओल्ड सिख है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, और जिसने वर्ल्ड वार 2 में लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से आर्मी में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा भी लिया था, और अभी तक उसने शादी नहीं की और अकेली ज़िंदगी गुजार रहा है। देयर आर बेसिकली 2 reasons दैट ही वॉज नॉट मैरिड। 2 कारण थे उसके शादी ना कर पाने के। फर्स्ट इज़ दैट ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली एंड हिज फैमिली इज़ अनेबल टू बाय हिम अ वाइफ। पहली जो कारण था वो ये था कि वो एक गरीब परिवार को बिलोंग करता था और उसके परिवार वाले उसके लिए एक अच्छी वाइफ को ख़रीद के देने के काबिल या असमर्थ थे। द सेकंड रीज़न इज़ दैट ही इज़ टू शाई टू प्रपोज एनीवन फॉर मैरिज। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था वो बहुत ही शर्मीला था और किसी को शादी के लिए प्रपोज करने की हिम्मत भी उसके अंदर मौजूद नहीं थी। यही 2 कारण थे कि 55 साल का होने के बावजूद भी वो एक लोनली लाइफ बिता रहा था। वन डे ऑन September noon while he was working in the field he hears the cry of a girl। 1 सितंबर की दोपहर जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था तभी उसको अपने पीछे से एक लड़की के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। He at once looked back and saw a girl being followed by a Sikh fellow। The girl is Muslim who has been seized from a column of refugee by his fellow Sikh। तो एकदम से वो पीछे देखता है, वो देखता है कि एक लड़की जो है वो रोते रोते भागी आ रही है और उसके पीछे उसका एक साथी जो सिख है वो उसके पीछे भागा हुआ चला आ रहा है। द गर्ल इज़ मुस्लिम। लड़की एक मुस्लिम लड़की थी जिसको कि इसके साथी सिख ने एक रेफ्यूजी कैंप, एक शरणार्थी शिविर में से अबडक्ट कर लिया था, उठा लिया था, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था कि डिफरेंट रिलीजन के लोग एक दूसरे के जो फीमेल से उसको उठा के उसके साथ दुष्कर्म भी करते थे। द गर्ल एट वंस फेल इनटू द फीट ऑफ बूटा सिंह एंड अर्जेस हिम टू सेव हर। लड़की बूटा सिंह को देख के एकदम से उसके पैरों में गिर जाती है और उसे उस सिख नौजवान से बचाने के लिए बूटा सिंह से रिक्वेस्ट करती है। बूटा सिंह एट वंस कम्स इन बिटवीन द कैप्टर एंड द गर्ल एंड द बॉयज़ गर्ल फॉर 1500 रुपीज़ विदाउट एनी बार्गेनिंग। बूटा एकदम से दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है
और अपने साथी सिख नौजवान से वो उस लड़की की कीमत पूछता है कि वो लड़की को ख़रीदना चाहता है, तो वो उसकी कीमत 1500 बताता है। बिना किसी तोल मोल किए वो उसे 1500 देता है और ज़ैनब को अपने साथी सिख से ख़रीद लेता है। नो डाउट बूटा सिंह सीज हेयर एन अपॉर्चुनिटी टू एंड हिज ओन लोनलीनेस, but it also shows that amidst the fire of hatred, बूटा सिंह stands as a symbol of love and humanity. No doubt कहीं ना कहीं बूटा सिंह के मन के अंदर एक लालच था कि ज़ैनब को वो अगर ख़रीद लेता है तो वो इतने सालों से उसकी ज़िंदगी में जो अकेलापन है वो ज़ैनब के ज़रिए उस अकेलेपन को दूर कर सकता है। बट जहाँ पे उसके अंदर ये मतलबीपन था, बट वहीं पे वो एक ऐसा करैक्टर भी बनाया गया है जो इतनी नफ़रत के बीच में भी प्यार और इंसानियत का प्रतीक है। वो भी उसका साथी सिख ही था जो उस लड़की को उठा के लेके आया था, वो भी एक इंसान था और उसके साथ वो जाके रेप या और कुछ गलत भी कर सकता था। बट वहीं पे बूटा सिंह भी उसी रिलीजन को बिलोंग करता है, बट उसके बावजूद भी बूटा सिंह उस लड़की को ख़रीदता है, बचाता है और उसके साथ कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। इसीलिए उसके मन में लालच होने के बावजूद भी बूटा सिंह इंसानियत और प्यार का प्रतीक बन के कहानी में उभरता है। द गर्ल, अब गर्ल के बारे में जानेंगे, वो लड़की थी कौन। द गर्ल इज़ ओनली 17 years old and is junior to बूटा सिंह by 38 years and her name is ज़ैनब। जो लड़की थी वो केवल 17 साल की थी और बूटा सिंह से 38 साल छोटी थी और उसका नाम था ज़ैनब। Soon the girl becomes a lovely little plaything for Boota Singh, around which his whole life revolved. She is for him half daughter and half mistress. जल्दी ही बूटा सिंह उसे अपने घर ले जाता है और धीरे धीरे करके ज़ैनब जो है उसकी लाइफ का वो केंद्र बिंदु बन जाती है जिसके इर्द गिर्द बूटा सिंह की पूरी ज़िंदगी अब घूम रही है। वो उसके लिए आधी बेटी भी है, आधी उसके लिए उसकी वो प्रेमिका भी है। He showers on her all his love and affection. इतने सालों से उसने अपने अंदर जो प्यार, जो भावनाएं को दबा के रखा था, वो सारी भावनाएं वो ज़ैनब के ऊपर शावर कर देता है, बरसा देता है। Often he goes to nearby market to bring different gifts for ज़ैनब to please her and make her happy. अक्सर वो पास की मार्केट में जाता है, ज़ैनब के लिए अलग अलग गिफ्ट लेके आता है ताकि वो उसे खुश कर सके, ताकि वो उसे हंसता हुआ देख सके। ग्रेजुअली ज़ैनब टू स्टार्ट फीलिंग अफेक्शन एंड लव फॉर हिम। धीरे धीरे करके ज़ैनब भी बूटा सिंह के लिए अपने दिल में भावनाओं को मरता हुआ महसूस करती है। जब उसे लगता है कि उसने इतना कुछ किया उसके बावजूद भी बूटा सिंह ने उसको बचाया, कभी भी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, इसी के कारण धीरे धीरे करके ज़ैनब के दिल में भी बूटा सिंह के लिए जो प्यार है वो आ जाता है। फाइनली वन डे दे मैरी इन ट्रू सिख ट्रेडिशन, दस द टू बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। फिर एक दिन फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब वो एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन जाते हैं और पूरे सिख रीति रिवाजों के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहिब के प्रेजेंस में वो लोग अपनी शादी को एक लीगल रूप दे देते हैं। दे इवन हैव अ डॉटर आफ्टर अ ईयर ऑफ देयर मैरिज नेम तनवीर। शादी के 1 साल बाद उनके घर में बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वो लोग तनवीर रखते हैं, जिसका मतलब है आकाश का कोई करिश्मा, मैजिक ऑफ द स्काई। Thus we can see that they are living a very happy and blessed life. तो हमें ऐसा लगता है कहानी के इस पोर्शन तक कि कहानी की एक हैप्पी एंडिंग है, बहुत ही खुशियों भरी ज़िंदगी बिता रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, बट देयर हैप्पीनेस इज़ शॉर्ट लिव्ड। One day the nephews of Boota Singh complained to the officials about the presence of ज़ैनब in Boota Singh's house. बट ये खुशी उनकी थोड़े समय के लिए थी क्योंकि जल्दी ही बूटा सिंह के भतीजों को लगा कि जो प्रॉपर्टी बूटा सिंह के बाद उनकी होनी थी वो तो बूटा सिंह की शादी के कारण अब ज़ैनब और उसकी बेटी की हो जाएगी।
तो उन लोगों ने ऑफिशियल को शिकायत कर दी कि बूटा सिंह ने ज़बरदस्ती अपने घर में एक मुस्लिम लड़की को रखा हुआ है। एट दैट टाइम एन एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स टू रिटर्न वुमेन कैप्चर ड्यूरिंग द राइट्स ऑफ 1947 पार्टीशन। और ये शिकायत उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों लाती है, क्योंकि उसी समय भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुई थी कि दोनों देश जो हैं वो उन औरतों को वापस अपने अपने फैमिलीज़ को अपने अपने देशों को लौटा देंगे जिन औरतों को दंगों के दौरान पकड़ के लोगों ने ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया था। सो ज़ैनिब वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम एंड पुट इन अ कंसंट्रेशन कैंप। तो ज़ैनिब को उससे दूर कर दिया जाता है और एक शरणार्थी शिविर में रख दिया जाता है, और ताकि उसकी फैमिली को लोकेट करके उसे पाकिस्तान वापस भेजा जा सके। बूटा सिंह डेली विजिट्स द कंसंट्रेशन कैंप टू मीट हर। 6 महीने तक बूटा सिंह रोज़ अपनी बेटी के साथ ज़ैनिब को मिलने कंसंट्रेशन कैंप जाता है। फाइनली द न्यूज़ केम दैट ज़ैनिब फैमिली वाज लोकेटेड एंड सून शी वाज सेंट टू पाकिस्तान। फाइनली एक दिन वो खबर भी आ जाती है कि ज़ैनिब की फ़ैमिली को ढूंढ लिया गया है और ज़ैनिब को पाकिस्तान उसकी फ़ैमिली के पास भेज दिया गया है। बूटा सिंह मेक्स एवरी एफर्ट टू गेट हर बैक। ही इवन बिकम्स अ मुस्लिम। बूटा सिंह ज़ैनिब को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, यहाँ तक कि जो एक सबसे मुश्किल काम है किसी भी इंसान के लिए, वो अपना धर्म परिवर्तन भी करवा लेता है। इसी चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि बूटा सिंह ज़ैनिब से कितना सेल्फलेस प्यार करता है कि वो उसके लिए अपने धर्म को छोड़ के एक मुस्लिम भी बन जाता है। बट स्टिल ही वाज नॉट अलाउड टू टेक हर बैक। बट इसके बावजूद भी अथॉरिटीज़ उसको ज़ैनिब को वापस नहीं करती हैं। ही इवन अप्लाइड फॉर वीज़ा एंड इमिग्रेशन बट बोथ आर बीइंग रिजेक्टेड बिकॉज ही वाज नॉट मुस्लिम बाय बर्थ। वो वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए भी पाकिस्तान एम्बेसी के पास अप्लाई करता है, बट उसकी दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि केवल जो लोग बाय बर्थ मुस्लिम हैं उन्हीं को पाकिस्तान भेजा जाएगा, जिन्होंने धर्म कन्वर्ट किया उनको पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। सो वी सी दैट हाउ मच बूटा सिंह लव्स ज़ैनिब दैट ही इवन कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू अ मुस्लिम, द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिज सिख। तो इसी बात से अंदाज़ा हो जाता है कि बूटा सिंह कितना ज़ैनिब को प्यार करता है, कि जो किसी भी सिख के लिए सबसे मुश्किल काम है अपने धर्म को परिवर्तित करना, वो ज़ैनिब के लिए वो मुश्किल काम भी कर लेता है। वन नथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू हिज विश ही इलीगली क्रॉस द वाटर। जब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी नहीं हो पाता, वो गैर कानूनी ढंग से रात के अंधेरे में अपनी बेटी के साथ गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है। ही वेंट टू द विलेज वेयर ज़ैनिब लिव्स। अंत में वो एक फ्रेंड की सहायता से उस गांव में भी पहुंच जाता है जहां पे ज़ैनिब रहती थी। बट व्हेन ही रीच देयर ही वाज शॉक्ड टू नो दैट ज़ैनिब वाज मैरिड विद इन आवर्स व्हेन शी रीच्ड हर विलेज विद वन ऑफ हर कज़न। बट उसे जाते वहाँ पे एक बड़ा शौक लगता है जब उसे ये पता चलता है कि जैसे ही ज़ैनिब पाकिस्तान आई थी, आते ही उसकी कुछ ही घंटों में दोबारा से उसी के कज़न के साथ शादी कर दी गई थी। बूटा सिंह वॉज टोटली ब्रोकन आफ्टर हेयरिंग द न्यूज़। बूटा सिंह इस खबर को सुन के बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसके लिए ज़ैनिब ही सब कुछ थी, उसकी दुनिया थी। जब ज़ैनिब भी उससे दूर हो गई है तो उसे लगता है कि उसकी दुनिया जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बट स्टिल ही वांटेड टू मीट ज़ैनिब एट लीस्ट वन टाइम फॉर द सेक ऑफ देयर लव एंड डॉटर। बट इसके बावजूद भी वो एक बार ज़ैनिब को मिलना ज़रूर चाहता है, ताकि वो उसको अपनी बेटी और प्यार का वास्ता देकर अपने साथ जाने के लिए मना सके। When Zenib's family came to know about the arrival of Bhutta Singh there, they took it as an insult and disgrace to honor and pride of their family, and Bhutta Singh beat Bhutta Singh very badly. जब ज़ैनिब की फैमिली को पता चलता है बूटा सिंह का वहाँ आने का, वो इसे अपने मान और सम्मान, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी उसकी फैमिली की, तो वो इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिव लेते हैं अपने मान और सम्मान के लिए। बूटा सिंह को बुरे तरीके से मारते पीटते हैं। Zenib's family put him behind the bar with the help of police as an illegal arrival to the nation। और यहाँ तक कि पुलिस की सहायता से उसको गैर कानूनी ढंग से
पाकिस्तान में एंटर करने के लिए उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। सून द स्टोरी बूटा सिंह वॉज पुट इन टू द ट्रायल, बूटा सिंह को अदालत में लेके आया जाता है। सून द स्टोरी ऑफ बूटा सिंह एंड ज़ैनब बिकेम पॉपुलर इन द होल पाकिस्तान व्हेन बूटा सिंह डिस्क्लोज हिज ट्रेजिक स्टोरी टू द मैजिस्ट्रेट। और जब उसे अदालत लेके आया जाता है तो जब वो अपनी दुख भरी कहानी जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बताता है, तो बूटा सिंह और ज़ैनब की कहानी जल्दी ही अखबारों के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में फेमस हो जाती है। ऑन हियरिंग द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ बूटा सिंह, द मैजिस्ट्रेट इशूड एन ऑर्डर टू ज़ैनब्स फैमिली टू ब्रिंग हर इन द कोर्ट टू गिव हर वर्डिक्ट। बूटा सिंह की दुख भरी कहानी सुनने के बाद जज ज़ैनब की फैमिली को समन भेजते हैं कि वो ज़ैनब को कोर्ट लेके आएँ, ताकि ज़ैनब अपने विचार बता सके कि वो बूटा सिंह के साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। However, all the newspaper get filled with the story of Butta Singh, and on the day of trial the whole courtroom was filled up with the people waiting anxiously for Janib's response. सारे का सारा जो पाकिस्तान की न्यूज़पेपर थे, सारे के सारे पाकिस्तान में यही कहानी जो है वो लोगों के मुंह में चढ़ जाती है। और जिस दिन अदालत में इनकी पेशी थी, उस दिन पूरा का पूरा वो कोर्ट रूम जो था वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था। एंशियसली, बड़े ही उत्सुकता से इस वेट में कि ज़ैनब क्या प्रतिक्रिया देती है बूटा सिंह के इस रिक्वेस्ट की। However, Butta Singh is also very anxious for the coming of Zainab, as he was sure that Zainab will surely become ready to go with him. बूटा सिंह भी बड़ी उत्सुकता के साथ ज़ैनब का आने की वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था, उसे अपने प्यार के ऊपर भरोसा था कि ज़ैनब उसके साथ चलने के लिए ज़रूर तैयार होगी। Finally, followed by angry male members of her family, terrified Zainab enters the courtroom. अंत में वो क्षण भी आ जाता है जब ज़ैनब अदालत के उस कमरे में एंटर होती है। उसके पीछे पीछे गुस्से से भरे हुए, एजिटेटेड उसके फैमिली के जो मेल मेंबर्स थे वो भी उसके साथ आते हैं। बूटा सिंह वॉज लुकिंग एट हर विद होप ऑफ लाइफ बिकॉज फॉर बूटा सिंह ज़ैनब इज़ हिज होल वर्ल्ड। तो बूटा सिंह बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से ज़ैनब की तरफ देख रहा था। क्यों? क्योंकि बूटा सिंह के लिए ज़ैनब ही उसकी पूरी दुनिया थी। इसीलिए उसे बहुत उम्मीद थी कि ज़ैनब हाँ करेगी और उसकी ज़िंदगी को एक नया रुख दे देगी। तो वो बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से ज़ैनब की तरफ देखता है। फाइनली द ट्रायल बिगिन, द जज आस्क्ड वेदर शी नोज़ बूटा सिंह। तो अंत में जो अदालत की प्रक्रिया शुरू होती है, जज ज़ैनब से पूछता है कि क्या वो बूटा सिंह को जानती है। ज़ैनब नॉट्स हर हेड एंड टेल्स हर दैट ही इज़ हिज फर्स्ट हस्बैंड बूटा सिंह। ज़ैनब अपना हाँ में सर हिलाती है और बताती है कि हाँ वो उसे जानती है, वो उसका पहला पति बूटा सिंह है। द मैजिस्ट्रेट अगेन आस्क्ड हर वेदर शी वांट्स टू गो विद हिम टू इंडिया। मैजिस्ट्रेट फिर से उससे पूछता है कि वो बिना किसी डर से जवाब दे सकती है कि क्या वो उसके साथ भारत जाने के लिए तैयार है या नहीं है। एट दिस मोमेंट बूटा सिंग्स होल लाइफ हैंग्स ऑन अ बैलेंस डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लाई ऑफ ज़ैनब। अब उसके आंसर देने के क्षण तक बूटा सिंह की लाइफ जो है वो एक बैलेंस में हैंग कर रही थी कि ज़ैनब का कैसा रिस्पांस आएगा। उसी प्रकार से बूटा सिंह की ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा। अगर वो हाँ करती है तो बूटा सिंह की ज़िंदगी सुधर जाएगी, अगर वो ना करती है तो बूटा सिंह की ज़िंदगी जो है वो मौत से भी बदतर हो जाएगी। बूटा सिंह वॉज श्योर फॉर हर फेवरेबल रिप्लाई फ्रॉम हर, बट under the fear and pressure of her family, Zainab gives a negative response that she does not want to go with him. तो बूटा सिंह को पूरी उम्मीद थी कि ज़ैनब एक हाँ में उसको जवाब देगी, बट ज़ैनब अपने फैमिली के प्रेशर के अंदर टूट जाती है और वो ना में अपना सर हिला देती है। Hearing her reply, Butta Singh burst into tears and asked her to at least take their daughter with her. ये सुन के बूटा सिंह के आंसू निकल आते हैं और वो फिर से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाना चाहती तो कम से कम वो उन दोनों की बेटी को अपने पास रख ले, ताकि उसकी बेटी को माँ का प्यार जो है वो ज़रूर मिल सके।
Here again, knowing the response of her family, Jenny nodded and said no. फिर से वो अपनी फैमिली की तरफ देखती है, उनके रिएक्शन के मुताबिक वो फिर से ना में सर हिला देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ले भी जाती है तो उस लड़की की ज़िंदगी उसके फैमिली वाले बद से बदतर कर देंगे, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। एट दिस बूटा सिंह वॉज टोटली ब्रोकन एंड फॉर सम टाइम ही फेल्ट अनकॉन्शियस। इस समय बूटा सिंह पूरे तरीके से टूट जाता है, कुछ समय के लिए वो अपने होशो आवाज़ खो देता है। एट लास्ट बूटा सिंह लेफ्ट द कोर्ट रूम दैट शी हर्ड द वॉइस ऑफ मल्टीट्यूड नॉट हर हार्ट एंड दैट हैज़ ब्रोकन हिम टोटली। और वो ये कहता हुआ कोर्ट रूम अदालत के कमरे से बाहर चला जाता है कि जैनब ने लोगों की आवाज़ सुनी, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी, और उसके इस काम के कारण बूटा सिंह पूरे तरीके से टूट चुका है। ही टेल्स हर दैट शी वॉज फॉर हिम द होल वर्ल्ड बट नाउ हिज लाइफ सीन्स मीनिंगलेस टू हिम। वो उसे ये कहते हुए अदालत को छोड़ के चला जाता है कि वही उसकी पूरी दुनिया थी, अब जब वही उसके साथ नहीं रही तो उसको अपनी ज़िंदगी बेमायने लग रही है। Bhutta Singh spent the whole night in a mosque, weeping and crying. In the morning, at first, Bhutta Singh took her daughter to nearby market and brought her a beautiful dress and pair of embroidered shoes. पूरी रात वो दोनों बाप बेटी ने एक मस्जिद के बाहर गुजारी। दोनों वहाँ पे रोते रहे। पिता अपनी बेटी को समझाता रहा कि अब वो उसकी माँ उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं लौटेगी। अगले दिन सुबह वो अपनी बेटी को मार्केट लेके गया, वहाँ पे उसको अच्छे कपड़े अच्छे जूते लेके उसको ख़रीद के दिए। फाइंडिंग होल्डिंग हर हैंड्स ही टुक हर टू द नियर बाय रेलवे स्टेशन एट शादरा। ऑन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हिज डॉटर वेदर हर मदर विल come to them or not, Bhutta Singh replied that now her mother will never come back to her. Soon Bhutta Singh वो उसका हाथ पकड़ के पास ही के रेलवे स्टेशन शादरा के ऊपर ले जाता है। वहाँ पे अपनी बेटी को समझाता है कि अब उसकी माँ उसकी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगी। Soon Bhutta Singh heard the whistling of train arriving on the platform. As the train came near, his daughter felt his father's hand tightening her hands, and when the train arrived on the platform, Bhutta Singh along with his daughter jumped before the train. जैसे ही बूटा सिंह ने रेल की विसल को बजते हुए सुना, उसने अपनी बेटी के हाथों को ज़ोर से पकड़ लिया। जैसे ही जो गाड़ी वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी, उसने चलती हुई गाड़ी के आगे अपनी बेटी के साथ छलांग लगा दी। बूटा was killed at the instant. However, his daughter was saved unscathed by a miracle. बूटा सिंह उसी समय मर जाता है, बट उसकी बेटी जो है बिना किसी खरोच आए बच जाती है। जैसे उसकी बेटी का नाम तनवीर था, आकाश का करिश्मा, तो ये भी एक करिश्मा ही था कि ट्रेन के नीचे आने के बावजूद भी उसे एक ज़रा सी खरोच भी नहीं आती। ए ब्लड सॉक्ड सुसाइड नोट वॉज फाउंड अलॉन्ग द बूटा सिंह in which he has expressed his desire to get buried in the village of Zenib, and she must come time to time to put flowers on his grave. तो उसकी डेड बॉडी के पास से एक खून से लथपथ सुसाइड नोट भी बरामद होता है, जिसमें वो उसने अपनी आखिरी इच्छा लिखी थी कि वो ये चाहता है कि उसको ज़ैनिब के गांव में दफनाया जाए, और टाइम टू टाइम ज़ैनिब उसकी कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने ज़रूर आए। The death of Butta Singh stirred a wave of emotion in the whole Pakistan. Now same Muslim who were at one time enemies of Hindus and Sikhs felt emotionally attached with Butta Singh. बूटा सिंह की इस मौत ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भावनात्मक विद्रोह लगा दिया। अब वही मुस्लिम लोग जो कि एक टाइम पे हिंदू और सिखों के खून के प्यासे थे, उनको बूटा सिंह के साथ एक अटैचमेंट, एक लगाव सा महसूस होने लग गया था। हिज फ्यूनरल बिकेम द मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। बड़े शान व शौकत के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। फाइनली बूटा सिंह वॉज बरीड इन द विलेज ऑफ ज़ैनिब, टेकिंग दिस एज एन इंसल्ट एंड डिस्ग्रेस to their honor and pride. The agitated members of Zenib's family sent their men to uproot the tomb of Butta Singh. Finally, तो उसका अंतिम संस्कार किया गया, ज़ैनिब के गांव में उसको दफना दिया गया। बट इस चीज़ को ज़ैनिब की फैमिली ने अपने शान के विरुद्ध माना, अपनी इंसल्ट माना, और उन्होंने अपने कुछ आदमी भेजे, और उन आदमियों ने बूटा सिंह की कब्र को उखाड़ के तहस महस कर दिया। देयर सैवेज एक्शन brought up a wave of emotion and anger in the people of Pakistan. इस चीज़ ने पाकिस्तान के पूरे लोगों को गुस्से
से भर दिया था। द गवर्नमेंट फाइनली ट्रांसफर्ड हिज टॉम्ब टू द फुट ऑफ अ वैली इन लाहौर। फाइनली गवर्नमेंट ने उसकी कब्र को एक पहाड़ी के नीचे स्थापित कर दिया लाहौर के अंदर। However, Zenith's family again sent their men to destroy the tomb of Butta Singh, but this time many Muslims themselves came to protect the grave of Sikh convert. और जैनिफ की फैमिली ने फिर से अपने कमांडो भेजे ताकि वो दोबारा से, क्योंकि उनको लगा फिर से उनकी इंसल्ट हो गई है, वो दोबारा से उसकी कब्र को उखाड़ना चाहते थे। बट दिस टाइम मैनी मुस्लिम themselves came to protect the grave of Sikh convert. अब वही मुस्लिम लोग जो कुछ साल पहले 1947 में हिंदू और सिखों को मार रहे थे, वही लोग अपनी मर्ज़ी से एक सिख कन्वर्ट की कब्र को बचाने के लिए, उसकी सेफ गार्ड के लिए अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे आके उसकी कब्र की प्रोटेक्शन कर रहे थे। सो वी कैन सी दैट राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड बूटा सिंह इज़ प्रेजेंटेड एज ए सच करेक्टर who not only earns our sympathy but also love and affection toward him. तो बूटा सिंह शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसा करैक्टर हमारे सामने पेश किया गया है जो ना केवल हमारी संवेदना, हमदर्दी, बल्कि हमारी भावनाओं और प्यार को भी हमारे अंदर उसके प्रति जागृत करवाता है। Conclusion to conclude, we can say that the sacrifice of Butta Singh has made the pupil learn the lesson of love, peace and brotherhood and अनलर्न द लेसन ऑफ हेट्रेड एंड एनिमिटी। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बूटा सिंह की इस कुर्बानी ने दोनों देशों के लोगों को प्यार, शांति और भाईचारे का लेसन सिखाया और दुश्मनी और नफ़रत का जो लेसन 1947 में बोया गया था उसको भूल जाने के लिए प्रेरित किया। ही हैज़ मेड इट क्लियर दैट लव इज़ द सुप्रीम पावर इन द यूनिवर्स। उसने ये क्लियर कर दिया कि प्यार ही दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। दो देयर लव स्टोरी एंडेड इन अ ट्रेजेडी बट स्टिल बूटा सिंह शोड इट टू द वर्ल्ड दैट लिटिल फ्लेम ऑफ लव कैन रिमूव हेट्रेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। नो डाउट उनका प्यार जो है वो एक ट्रेजेडी के रूप में अंत होता है, बट फिर भी बूटा सिंह ने अपने करैक्टर के ज़रिए ये पेश कर दिया था, ये शो कर दिया था कि प्यार की एक ज़रा सी चिंगारी ही दुनिया से नफ़रत और दुश्मनी को ख़त्म कर सकती है। However, we cannot ignore the role of chance and fate in their love story because it was fate or chance that brought them together in the beginning and it was again fate and chance that separated them in the end. और इस कहानी में किस्मत और चांस का रोल भी बहुत अहम है, क्योंकि ये किस्मत ही थी जो उन दोनों को नज़दीक लाई और ये फिर किस्मत ही थी जिसने अंत में उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। However, we cannot deny the fact that Butta Singh is the most lovable character in the story, who in the end gives a little hope to the people of India and Pakistan for a better tomorrow where there will be no hatred and enmity between them and they will learn the lesson of love and brotherhood. तो बूटा सिंह, इस चीज़ से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। बूटा सिंह ने एक ऐसा उम्मीद की किरण आने वाली कल के लिए दोनों देशों के लोगों को दी कि एक ऐसा कल मुमकिन होगा एक दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब दोनों देशों के लोग जो है वो दुश्मनी, नफ़रत से ऊपर उठ के भाईचारे, प्यार और सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ दोबारा रहना स्टार्ट कर देंगे। सो इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट लव स्टोरी ऑफ बूटा सिंह ट्रांसेंड्स एवरी बैरियर ऑफ रिलीजन, नेशन एंड एवरी अदर थिंकिंग दैट सेपरेट वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर। तो इस तरीके से बूटा सिंह का ये जो प्यार की कहानी थी वो हर बाधा को, हर बंधन को पार कर जाती है, चाहे वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, या हर वो सोच जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इस लेसन में बेसिकली 3 टाइप ऑफ रिलेशंस का हम लोगों ने एनालिसिस किया। फर्स्ट रिलेशन, एक देश का दूसरे देश के साथ। दूसरा रिलेशन, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों के साथ। तीसरा सबसे बड़ा रिलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो 3 रिलेशन इस लेसन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।